بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک کی بحث سے یہ واضح ہوا کہ کاغذی کرنسی کی حیثیت ابتدا میں ثمن کی نہیں بلکہ دین کے وثیقے کی تھی، لیکن اب ان کی وہ حیثیت نہیں رہی بلکہ اب تو یہ علامتی زر بن گئی ہے۔ چنانچہ جو معاصر اہل علم اس کرنسی پر فلوس کے احکام کا اطلاق کرتے ہیں وہ اس کی علامتی زر والی حیثیت نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ رائے تو بہت ہی کمزور ہے۔ اس کی بنسبت اس کرنسی کو ثمن عرفی کہنے والے نسبتاً بہتر پوزیشن پر ہیں۔ اس لیے ذرا ان لوگوں کا استدلال بھی واضح کر دیں جو اسے ثمن عرفی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اسے ثمن عرفی ماننے کے نتائج کا ذکر کریں گے۔ علامتی کرنسی کو شرعاً قابل قبول قرار دینے کے لیے استدلال مصلحہ مرسلہ کے اصول سے کیا جاتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ قیاس اور مصلحت مرسلہ میں فرق یہ ہے کہ قیاس میں تو ایک خاص جزئیہ اصل کے طور پر کام کرتا ہے، جبکہ مصلحت مرسلہ کی صورت میں کوئی ایک خاص جزئیہ نہیں ہوتا لیکن کئی جزئیات سے ایک عمومی قاعدہ بنتا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سفر کی حالت میں شریعت نے نماز میں قصر کی رخصت دی ہے، اور اسی طرح روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اسی طرح بچوں کے گھر میں آنے جانے پر اجازت لینے کے عمومی احکام کا اطلاق نہیں کیا ہے سوائے 3 اوقات کے۔ بلی کے جھوٹے کو شریعت نے ناپاک نہیں قرار دیا۔ اس طرح کی مختلف جزئیات جو مختلف مسائل میں ہیں، مختلف ابواب میں ہیں، ان سب کے پیچھے ایک مشترک تصور کار فرما ہے کہ جہاں زیادہ مشقت ہو وہاں شریعت آسانی پیدا کر لیتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مصلحت مرسلہ کے ذریعے کسی نئے تصور کو قبول کیا جا سکتا ہے اگر 3 شرائط پوری ہوں۔ ایک یہ کہ اس نئے تصور سے کسی نص کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ دوسری یہ کہ اس نئے تصور سے شریعت کے قواعد عامہ جنہیں امام غزالی تصرفات الشرع کہتے ہیں کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ اور تیسری یہ کہ اس نئے تصور کے حق میں ایجابی پہلو سے پازیٹیولی شریعت میں کوئی بنیاد ہو، خواہ خصوصی جزیہ نہ ہو بلکہ کئی جزیات سے حاصل شدہ ایک عمومی تصور ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مصلحت مرسلہ کے اس قاعدے کے ذریعے کرنسی نوٹ کو ثمن مانا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ نوٹ 2 کام کر سکتے ہیں جو شرعاً ثمن کے کرنے کے ہیں، یعنی مالیت محفوظ رکھنا، اسٹوریج آف ویلیو، اور مبادلے کا ذریعہ، میڈیم آف ایکسچینج۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ مبادلے کا ذریعہ تو ریاستی جبر نے اسے بنا دیا ہے، اور مالیت محفوظ رکھنے کے لیے ناقص طریقہ ہی صحیح لیکن ریاستی جبر کی موجودگی میں یہ کام بھی کسی نہ کسی حد تک ہو رہا ہے۔ مزید کہا جاتا ہے کہ شریعت نے کئی مقامات پر مظنت الشیء کو اس شے کے قائم مقام کے طور پر فرض کیا ہے، یعنی کسی شے کی آؤٹ ورڈ انڈیکیشن کو اس شے کی موجودگی کے طور پر فرض کیا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت نے نیند کو ناقض وضو مانا ہے، یا جسمانی بلوغت کو عقلی بلوغت کے لیے علامت کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ تو اسی طرح نوٹ خواہ بذات خود مال نہ ہوں لیکن ریاستی جبر کی موجودگی میں ان کو مالیت کے لیے مظنت الشیء اور اسی مظنت الشیء کو نفس الشیء کے قائم مقام مانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اقامت مظنت الشیء مقام نفس الشیء کے اصول کے تحت نہ کہ محض رفع حرج کے نام پر ان نوٹوں کو ثمن مانا جا سکتا ہے، یعنی ایک جانب رفع حرج کا اصول بھی ہو، اضطرار، ریاستی جبر، اور دوسری جانب یہ کہ ان نوٹوں کو ہم مال کے قائم مقام مان سکتے ہیں کیونکہ مظنت الشیء کو نفس الشیء کے قائم مقام مانا جا سکتا ہے۔ ناقص طور پر ہی صحیح کسی نہ کسی حد تک یہ ثمن کا کام تو کر رہا ہے۔ اس استدلال میں مسائل ہیں، لیکن ان مسائل کو نظر انداز کر کے تسلیم کر لیں کہ علامتی کرنسی کو ثمن کا حکم دینے کا جواز مل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ نتائج ہیں جو لازماً ماننے پڑیں گے۔ مثلا ان کے ذریعے زکوٰۃ کی ادائیگی
को हम मानेंगे। इसी तरह नफ़क़े की अदायगी भी होगी, दीगर दुयून की अदायगी भी जायज़ हो जाएगी। दूसरी बात यह कि इन पर बेउस्सर्फ के अहकाम का इतलाक़ होगा। अगर ये समन है तो समन पर बेउस्सर्फ के अहकाम का इतलाक़ होगा, चुनांचे ये काम नाजायज़ हो जाएंगे। नंबर 1 रुपये के बदले 2 रुपये लेना नाजायज़ होगा, क्योंकि ये रिबल फजल है। इसी तरह 1 रुपया आज देकर कल 1 रुपया लेना नाजायज़ होगा, ये रिबा नसिया है। इसको आप गैर सूदी कर्ज समझते हैं, लेकिन अगर ये मुआवजा के तौर पर है, बे के तौर पर है, तो फिर ये नाजायज़ है। कर्ज हसन जायज़ हो सकता है, वो तबर्रो है, लेकिन उसमें टाइम आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम आपने फिक्स कर लिया रिपेमेंट का, वापसी का, तो आपने उसको मुआवजा बना दिया, और मुआवजा बना दिया तो फिर ये नाजायज़ हो जाएगा। इसी तरह $1 आज देकर 100 रुपये कल लेना यह नाजायज़ होगा, इसी को करेंसी सलम कहते हैं। या इसी तरह 1 रुपया आज देकर कल 2 रुपये लेना, ये भी नाजायज़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिबल फजल और रिबल नसिया दोनों आ जाते हैं। इसमें इजाफा भी है, इसमें डिले भी है, इसी को आप सूदी कर्ज कहते हैं। ये सब कुछ नाजायज़ हो जाएगा। अलबत्ता जैसे मैंने अर्ज किया, कर्ज हसन बतौर तबर्रो, बतौर खैरात, बतौर एन एक्ट ऑफ चैरिटी जायज़ रहेगा, लेकिन उसमें वक्त की क़ैद आप लाजिम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तीसरा नतीजा ये होगा कि मुख्तलिफ करेंसियों के तबादले में तफाजुल तो जायज़ होगा। $1 के बदले आप 200 रुपये ले सकेंगे, लेकिन दोनों करेंसियों का तकाबुज फिल मजलिस, एक ही मजलिस में पोजेशन ट्रांसफर करना ये लाजिम होगा, वरना रिबा नसिया हो जाएगा। गोया करेंसी सलम के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी जब आप इस करेंसी को समन उर्फी मानेंगे। चौथा नतीजा ये निकलेगा कि कर्जों की इशारिया बंदी, इंडेक्सेशन ऑफ लोन्स की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। चुनांचे ये नहीं कहा जा सकेगा कि जब कर्ज दिया था तो रुपए की कीमत इतनी थी और अब इतनी हो गई है। जब एक दफा आपने करेंसी नोट को समन मान लिया, तो फिर उसके फेस वैल्यू को ही देखा जाएगा और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बहस गैर मुताल्लिक हो जाएगी। ये समन मानने का लाजमी नतीजा है। मुख्तसरन ये कि जब करेंसी नोट को समन मान लिया, तो फिर समनीयत के तमाम तकाजे पूरे करने होंगे, और उनको समन मानने की वजह यह है कि रियासती जबर ने इन्हें समन मान लिया है और इनसे समन ही का काम लिया जा रहा है। तो जब ये समन है, तो फिर समन के जो नताइज हैं वो मानने होंगे। यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। अब हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि हम अलामती करेंसी की समनीयत पर असल एतराज की बात कर सकें, लेकिन उससे पहले समनीयत के मुतालिक ये शरई उसूल भी जरा नोट कर लें। एक ये कि सोना और चांदी समन थे, समन हैं और समन रहेंगे। आप मेटल टोकन्स एक्ट या किसी भी कानून के जरिए इनको करेंसी के तौर पर इन पर पाबंदी लगा दें, लेकिन शरई तौर पर जब भी किसी ट्रांजैक्शन में सोना चांदी आएंगे तो उनकी हैसियत शरअन समन की होगी और उन पर समन के उसूलों का इतलाक होगा। किसी फर्द या रियासत के पास ये इख्तियार नहीं कि इनकी समनीयत बातिल कर दे। ये शरई समन है, जिस ट्रांजैक्शन में भी ये होंगे ये समन ही होंगे, और इनके मुकाबिल में जो चीज भी होगी वो मबी होगी। और समन और मबी के अलग अहकाम हैं, उन पर भी किसी नशिस्त में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। सोने और चांदी के मुकाबिल में जो चीज भी होगी वह समन होगी, और सोना और चांदी को समन समझा जाएगा। और अगर सोना चांदी आपस में उनका तबादला हो रहा है तो दोनों समन होंगे, और इस ट्रांजैक्शन को बेउस्सर्फ कहते हैं, उसके खुसूसी अहकाम है। अच्छा, दूसरा शरई उसूल यह है कि जो कीमी अमवाल हैं, जो मिसली नहीं है, फंजिबल नहीं है, तो वो कभी समन नहीं हो सकते। वो जिस ट्रांजैक्शन में भी होंगे वो हमेशा मबी की सूरत में होंगे। तीसरा उसूल ये है कि सोने चांदी के अलावा जो अमवाली मिसली हैं, जो मिसली अमवाल हैं, मौजून हैं, मकील हैं या मादूदात मुतकारिबा हैं, वो समन भी हो सकते हैं, मबी भी हो सकते हैं। वो अगर मिसाल के तौर पर किसी माली कीमी के मुकाबिल में है तो इस माली मिसली को हम समन कहेंगे, और अगर इनका आपस में तबादला हो रहा है तो फिर आकिदैन जिसको
और समन करार दें वो समन, और जिसको वो मबी करार दें वो मबी। और अगर इनका तबादला सोने चांदी के साथ होता है तो जैसे मैंने अर्ज किया, सोना चांदी हमेशा उसको समन करार दिया जाएगा, और ये जो माली मिसली है तो ये मबी हो जाएगा। तो मुख्तसर ये, सोना चांदी जिस ट्रांजेक्शन में भी होंगे वो समन, माली कीमी जिस ट्रांजेक्शन में भी है वो मबी, और माली मिसली मबी भी हो सकता है और समन भी। अगर वो कीमी के मुकाबिल में है तो समन, अगर वो सोने चांदी के मुकाबले में है तो मबी, और अगर आपस में माली मिसली का माली मिसली के साथ मुकाबला हो रहा है और तबादला हो रहा है, तो फिर आकिदैन की मर्जी, वो जिसको समन करार दें जिसको मबी करार दें। चुनांचे कागजी करेंसी पर हमारा एतराज ये नहीं है कि रियासती जबर के बगैर इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये असल एतराज नहीं है। एतराज असल में यह है कि ये कागज, ये प्लास्टिक या आदाद महज आदाद हैं, महज आदाद जिन्हें रियासती जबर के जरिए माल करार दिया गया है, खाली आदाद जिनके पीछे वादा ही वादा है। ये अलामती जर देन की तख्लीक के जरिए पैदा किया जाता है, और ये शरअन बिल्कुल ही गलत बुनियाद है। डेट के जरिए आप मनी क्रिएट कर रहे हैं। बाकी रहा कागज का मसला, तो इस पर सोचिए कि वो मिसली है या कीमी, और इस पर जो अभी हमने उसूल जिक्र किए हैं उनका इतलाक कीजिए। मसला कागज का नहीं, खाली खूली आदाद और देन की तख्लीक के जरिए जर की तख्लीक का है। इसके बाद अगर यह सवाल किया जाता है कि जो अहले इल्म इस अलामती करेंसी या ज़र एतबारी को समनी उर्फी करार देते हैं, क्या उनकी राय में रियासत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी चीज को, यहां तक कि खाली खूली आदाद को भी समन करार दें? तो इस पर अर्ज है कि इन अहले इल्म ने बिलुमूम दो अप्रोचेस इख्तियार किए हैं, और ये सिर्फ फियाट करेंसी या ज़र एतबारी या अलामती करेंसी के मामले में ही नहीं, बिलुमूम जदीद सियासी और माशी मसाइल में इन अहले इल्म के यहाँ यही दो अप्रोचेस पाए जाते हैं। एक ये कि अब जबकि ये हो चुका और बज़ाहिर इसके जाने का कोई यकीनी इम्कान नजर नहीं आता, तो बस अब ये है, ये हो चुका तो ये है। दूसरा ये कि ये महज इंतजामी मामला है। दोनों अप्रोचेस गलत हैं। दूसरे अप्रोच की गलती तो अजहर मिन शम्स है। ये मामला महज इंतजामी नहीं है, बल्कि इससे माल, अक्द, हुकूक, मिल्कियत और बहुत सारे दीगर शरई तसव्वुरात और उसूलों पर जद पड़ती है। पहला अप्रोच, अब हो चुका तो अब क्या करें, अब ये है। ये अप्रोच इख्तियार करने वाले अहले इल्म अगर उसूली तौर पर इसे गलत करार दें, और इनमें चंद ऐसे हैं जो ये कहते हैं, और इसके बाद इसे रियासती जबर की वजह से इज़्तिरारन बर्दाश्त कर लेने की बात करें, और साथ में ये कहें कि इज़्तिरार की हालत से असल हालत की तरफ लौटना और उसकी कोशिश करना लाजिम है, तो ये बेहतर अप्रोच है। क्योंकि इस तरह कम अज कम उसूली गलती वाज़ेह रहती है और इज़्तिरारी हालत से निकलने का सोचा भी जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये अप्रोच इख्तियार करने वाले बेशतर अहले इल्म सिरे से इस बहस में ही नहीं पड़ते, बल्कि ये फर्ज किए लेते हैं कि अब तो ये हो चुका और अब हम वक्त का पहिया वापस नहीं घुमा सकते। एक बहुत ही मोहतरम साहिब इल्म ने एक दफा कहा कि जो बातें आप कर रहे हैं, ये तो हमें पत्थर के दौर में वापस धकेलने वाली बातें हैं। स्टोन एज में आप हमें वापस ले जा रहे हैं। अच्छा, इन मबाहिस से मालूम हुआ, आखिर में मैं खुलासा जिक्र करता हूँ कि अलामती करेंसी की शरई हैसियत के मुतालिक अहले इल्म ने तीन राय कायम की हैं और तीनों में मसाइल हैं। इब्तदाई राय ये थी कि जो किसी ज़माने में दुरुस्त भी थी कि ये देन का वसीक़ा है। उस वक्त ये सवाल उठाया जाता था कि अगर ये देन का वसीक़ा है तो इनसे ज़कात की अदायगी कैसे हो सकती है, बीवी का नफ़क़ा कैसे अदा किया जा सकता है, किसी और देन की अदायगी कैसे की जा सकती है, वगैरह। इस तरह के सैकड़ों सवालात और भी। लीगल टेंडर केसेस में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने भी इब्तिदा में यह फैसला दिया था कि अदायगी ज़र हकीकी में करना लाजिम है और नोटों से अदायगी पर आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। इस पर बैंकारों और खुद रियासत की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया और सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला तब्दील करने पर मजबूर किया गया। बाद में करेंसी नोटों
کو सोने से अलग करके उन्हें डॉलर के साथ मुंसलिक कर दिया गया, लेकिन डॉलर का ताल्लुक सोने के साथ रहा। 70 की दहाई में डॉलर का ताल्लुक सोने से भी काट दिया गया। चुनांचे कई अहले इल्म ने यह राय कायम की कि अब ये देन का वसीक़ा नहीं रहे। फिर इनकी शरई हैसियत क्या है? इस पर बाज़ अहले इल्म की राय ये बनी कि ये फलूस की तरह हैं, लेकिन ये राय उसूली तौर पर बहुत कमज़ोर है। एक तीसरी राय बाज़ अहले इल्म ने यह दी कि रियासती जबर के बाद इन करेंसियों को समन उर्फी की हैसियत हासिल हो गई है। इन आखिर ज़िक्र दोनों आरा पर हमने तनकीद करके इनकी कमज़ोरी वाज़ेह कर दी है। इनकी बुनियादी कमज़ोरी ये है कि इन आरा में तख्लीक ज़र के अमल को यकसर नज़रअंदाज किया गया है। मौजूदा अलामती करेंसियाँ दरअसल देन की तख्लीक के ज़रिए ज़र की तख्लीक के अमल के नतीजे में पैदा हुई हैं। बअल्फाज़ दीगर अब भी ये देन ही का वसीक़ा है, लेकिन सवाल यह है कि किस देन का वसीक़ा? पहले तो इनके पीछे सोना होता था, फिर इनके पीछे डॉलर रहा और डॉलर के पीछे सोना, लेकिन अब ना इनके पीछे डॉलर है ना डॉलर के पीछे सोना। अब अगर 100 रुपए के नोट पर लिखा हुआ है कि बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल हाजा को 100 रुपए मुतालबे पर अदा करेगा, तो पाकिस्तान का मरकजी बैंक मुतालबे पर आपको 100 रुपए ही देगा, ना कि इतने रुपयों का सोना। फिर भी अगर बैंक के पास आप गए और उससे कहा कि मुझे वादे के मुताबिक देन की अदायगी कर दो, तो वो ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि आपको 50 रुपए के 2 नोट या 10 रुपए के 10 नोट थमा देगा। फिर उस 50 के नोट पर आपको एक और वादा लिखा नजर आएगा, बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल हाजा को 50 रुपए मुतालबे पर अदा करेगा। होते होते आपके पास रुपए तो आ जाएंगे और कुछ नहीं, और हर रुपए पर एक वादा होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसी सूरत में जब आप किसी को 100 रुपए देते हैं और वो जवाब में आपको 50 रुपए के 2 नोट थमा देता है, तो आप दोनों क्या कर रहे हैं? खाली वादों का तबादला। आप भी उसको वादा थमा रहे हैं और वो भी आपको वादा थमा रहा है, और इन वादों के पीछे कुछ नहीं है। इसको हदीस मुबारक में बेउल कालिक बिल कालिक कहा गया है, और फुक़हाए किराम कहते हैं कि ऐसी बे फासिद होती है। तो फिर हल क्या है? हल भी तलाश किया जा सकेगा, लेकिन पहले मान तो लें कि मसला मौजूद है बदस्तूर, और बदस्तूर हल तलब है। मसले से इनकार की सूरत में हल की तलाश बेमानी है। बहुत शुक्रिया।